excited to create this particular product? Let me see into the chat. Let me see into the chat, guys. All right, that's great. That's great, guys. That's great. So we can move along. और यहाँ पर हम समझ सकते हैं, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे that what we are creating and why we are creating. So here, what happened is there's a company which is known as XYZ Private Limited. XYZ प्राइवेट लिमिटेड की एक कंपनी है जो हमारे पास आई है, जो निस्टिया इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास आई है, एंड दे वांट द कंप्लीट डेटा सर्विस फ्रॉम अस. दे वांट द कंप्लीट डेटा सर्विस फ्रॉम अस. उन्हें डेटा क्वालिटी चेक करवाना है, उन्हें इनसाइट्स जनरेट करवाना है और उन्हें डैशबोर्ड भी क्रिएट करवाना है. ये उन्हें करवाना है. कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड और वो आई है निस्टिया इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास. ऑलराइट, तो यहां पर क्या होता है, व्हेनेवर द क्लाइंट कम्स ऑन बोर्ड, एक कंपनी में जब भी एक क्लाइंट आता है तो वो क्लाइंट कम्युनिकेट करता है मैनेजर के साथ और फिर मैनेजर कम्युनिकेट करता है डेटा एनालिस्ट के साथ. तो यहां पर क्लाइंट ने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर लिया है मैनेजर के साथ. नाउ द मैनेजर इज कम्युनिकेटिंग विद द डेटा एनालिस्ट. अब यहां पर हो क्या रहा है, हाय देयर, आई हैव अटैच्ड द फॉलोइंग 3 डेटा सेट्स फ्रॉम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, कस्टमर डेमोग्राफिक, कस्टमर एड्रेस, ट्रांजैक्शन डेटा इन द पास्ट 3 months. Please review the quality of the data. When we are saying quality of the data, what does it mean? Quality of the data means कि कहीं डेटा में बहुत ज्यादा ब्लैंक्स वैल्यूज तो नहीं है, कहीं अनवांटेड डेटा तो नहीं है, कहीं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तो नहीं है, कहीं इनकंसिस्टेंट डेटा तो नहीं है, कहीं डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है. इस तरीके की चीजें हम वहां पर एनालाइज करने वाले हैं. क्लियर टू ऑल? यस और नो इनटू द चैट. क्लियर टू ऑल? यस और नो इनटू द चैट. What kind of operations we are going to be performing? Clear to all? Yes or no into the chat. So अगर मैं बहुत ज्यादा पिन आउट करूं चीजों को, what kind of operations we are going to be performing? First of all, we are checking the data quality using Excel. उसके बाद रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे डेटा इनसाइट्स की और उसके बाद डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे. ऑलराइट, एक्सेल से डेटा क्वालिटी चेक करेंगे, रिपोर्ट जनरेट करेंगे हम गूगल डॉक में और टैबलो से हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे. ओके, एक्साइटेड? Just drop a boom into the chat. Just drop a boom into the chat, guys. So the very first step is to download the data. I've already shared the link. This is the link from which you can download the data. Okay. And after that, we are going to be, first of all, doing the data cleaning. Now, let me share my screen again so you can get an idea that how you can do the data cleaning and all. Just a second. So this is how we are going to do that. Just let me just share this particular thing. All right. So this is the data operation and I'm going to be sharing this particular file with everyone. Okay. So dropping into the chat, please focus. Okay. This is the link, guys. This is the link. Just access the file from this. Then we can use Python. But in this particular scenario, it is compatible. All right, that is why we are using Excel. So जब भी आपका जो work है, आपका जो data है, if it is compatible with Excel, you don't need to use advanced tools. Okay, हर बार आप बड़ी चीजें use नहीं करेंगे. Okay, all right, moving on. Okay, so I'm just opening my Excel file so we can start performing the operations. All right, just a second. I'm just opening my file. So just a second, guys. All right. So here we go. Okay, I have to download the data again. So this is the workshop data set and I have downloaded the data, opening the archive file and then the raw data. All right, open the data set. Just a second, guys. I'm sharing my all right. So are you guys able to see my Excel screen? Yes or no into the chat? Yes or no into the chat, guys? All right. तो आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो मोबाइल फोन से currently you are like watching the webinar. Just write down M into the chat if you are watching the webinar using a mobile phone. Just write down M into the chat. Okay. So many of you are using mobile phones to like connecting into the webinar. So definitely you guys will not be able to perform this particular task. But what you can do is you can understand that what kind of task we are performing. और उसके बाद you'll get the recordings and you can practice using your laptop or desktop. Clear to all? Yes or no into the chat? Clear to all? अभी आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं और उसके बाद
जब आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किए थे. यू डोंट नीड टू ड्रॉप. अगर आप ड्रॉप करते हैं ऑल द थिंग्स आर गॉन. क्योंकि इन फेज 3 गाइज, अगेन इन द फेज 3 वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग that how you can make your career into the data domain. All right, so drop a boom into the chat. Let's recreate the whole excitement into the room so we can start working on the project. Let's recreate the excitement into the room, guys. Recreate the excitement. Let me see. All right, that's great. Ready to do it? Ready to do it? Just write down ready into the chat. All right, great. द वेरी फर्स्ट शीट, सबसे पहली जो शीट है हमारी, मैं फिर से अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, जो शीट हमने क्रिएट की थी उसके ऊपर, जिससे मैं आपको बता सकूं दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस वी नीड टू परफॉर्म. द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू ओपन द रॉ फाइल और उसके अंदर ट्रांजैक्शन शीट को हमको ओपन करना है. पहले हम ब्लैंक्स रिमूव करेंगे, मंथ्स का कॉलम क्रिएट करेंगे और प्रॉफिट का कॉलम क्रिएट करेंगे. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अब यहां पर वापस मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है. एक्सेल ओपन करने के बाद ट्रांजैक्शन शीट मैंने ओपन कर ली है. जब मैं जूम करता हूं, जूम करते ही मैं देखता हूं द वेरी फर्स्ट रो इज कंटेनिंग सम काइंड ऑफ नोट. ओके, इट इज कंटेनिंग सम काइंड ऑफ नोट. तो वो नोट जो है वो हमारा अनवांटेड डेटा है. यस और नो इनटू द चैट. दैट नोट इज द अनवांटेड डेटा. यस और नो इनटू द चैट. गाइज प्लीज बी सुपर एक्टिव ऑन टू द चैट. This is the unwanted data. That means we have to delete the first row. We have to delete the first row, right? All right, let's do one thing. Let's just zoom into it. First पर हम क्लिक करेंगे, वन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हम इसे डिलीट कर देंगे. If you have deleted the first row, just write down delete done. That is DD into the chat. DD into the chat, so I can get an idea that you have deleted the first row. All right, that's great. फिर से मैं बता देता हूं, there is the first row in every particular sheet that contains the note, and that note is the unwanted data. Okay, that note is the unwanted data. We have to delete the first row, and in order to delete the first row, all we have to do is we have to click on one, right click on it and delete it. All right, just write down DD into the chat if you have deleted the first row. All right. Now, moving to the second procedure. This is a very complex procedure. थोड़ा सा lengthy procedure है, तो आप confuse हो सकते हैं. That is why, please, total attention आपकी यहीं पर रखिए. Okay, पूरी attention आपकी यहीं पर रखिए. The very first thing, अब हमारा second operation क्या है? The second operation is to delete the blank value from the whole data set. और उसके लिए हम क्या करेंगे? First of all, we are hitting Ctrl+A and we are able to select the whole data. If the whole data is selected, just write down as D into the chat, select done into the chat, so I can get an idea that your whole data is also selected. As D into the chat. All right. As D के बाद हम Ctrl+G hit करते हैं. Ctrl+G hit करने के बाद, if you are able to see this particular dialog box, the go to dialog box, just write down go to done. That is G done. GD into the chat. GD into the chat. GD into the chat, guys. All right. Okay, great. इसके बाद आपको बॉटम में एक स्पेशल का ऑप्शन दिख रहा होगा. देखिए हमने क्या किया था. प्लीज बी फोकस. Ctrl+A एंड Ctrl+G. ठीक है, Ctrl+G के बाद हम यहां पर पहुंचते हैं. आपको स्पेशल दिखाई दे रहा होगा. जस्ट क्लिक ऑन स्पेशल. इफ यू आर एबल टू सी दिस पर्टिकुलर लिस्ट, जस्ट राइट डाउन लिस्ट इनटू द चैट. Just write down list into the chat if you are able to see this particular list. All right, great. Just select the blanks from the list. Blanks जो है वो select कीजिए. Okay कीजिए. Okay करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी ब्लैंक्स हैं आपकी शीट में वो सब सिलेक्ट हो चुके हैं. अब देखिए यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज या फिर ब्लैंक्स वैल्यूज को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं इनटू द डेटा डोमेन. अब यहाँ पर अगर
मेरे पास प्राइसिंग में ब्लैंक्स होते, उसको फिल करना होता तो मैं प्राइसिंग का एवरेज ले लेता, उसमें फिल इन कर देता। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि हर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ब्लैंक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइसिंग के अंदर हो, हर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ब्लैंक्स है, तो उसको ट्रीट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम ट्रीट नहीं करेंगे, हम डिलीट करेंगे। तो होम टैब के अंदर राइट हैंड साइड के पास डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट सेल्स पर आप क्लिक करते हैं और यहां पर आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इंटायर रो आप सिलेक्ट करते हैं, जस्ट हिट ओके। इफ द whole blanks is done, just write down BD into the chat. BD into the chat, guys. BD into the chat. This is the whole procedure. This is the whole procedure. Many of you are not able to understand the whole thing. देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने क्या किया था? Ctrl+A, Ctrl+G, clicking on special, then selecting the blanks, go to delete, delete blanks and entire row. All right? डन, यस और नो? मैं फिर से यहां पर पूरा प्रोसीजर लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, प्लीज फोकस। फर्स्ट ऑफ ऑल, Ctrl+A to select the whole data. Just write down SD into the chat. Select done into the chat. SD into the chat. Who were asking to repeat the process, please be focused. Okay, SD into the chat. After that, Ctrl+G. अगर ये डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है, just write down GD into the chat. GD into the chat, guys. All right. After that, click on special. Special में click on blanks. Okay, blanks में okay कीजिए. All the blanks on your whole sheet must be selected. Okay. इसके बाद आपको होम के अंदर जाना है, डिलीट पर क्लिक करना है, डिलीट सेल्स पर क्लिक कीजिए, select the entire row and click on OK. This is the whole procedure, and I have like dropped all the steps into the chat so you can have an idea, you can have a look on that. Okay, so this was the step to delete the blanks. इसके बाद चलते हैं दूसरे स्टेप पर, that is the task 2 into the first sheet. Task 2, what does it says? It says to extract the months from the date. अगर हम डेट देखें तो इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज होते हैं. फर्स्ट इज द डे, सेकेंड इज द मंथ एंड थर्ड इज द ईयर. अब इसमें से हमें क्या निकालना है? सिर्फ मंथ निकालना है. हाउ वी कैन डू दैट? सो जस्ट क्रिएट अ न्यू कॉलम with the name of the month. Create a new column. This is the new column that we have created. Just write down MD into the chat if you have created the new column. If you have created the new column, just write down MD into the chat. All right, great. अब इसके अंदर हमें क्या करना है? मंथ नाम का ये एक फॉर्मूला यूज करना है. तो इक्वल टू जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं. इक्वल टू लिखा, मंथ लिखा. मंथ लिखने के बाद हम इनपुट क्या देखने वाले हैं? इनपुट देने वाले हैं हम इसमें जो जिस सेल में हमारा डेट है, तो डेट यहां पर है, हमने इसको सिलेक्ट किया, एंटर हिट कर दिया, हमारे पास 2 आ चुका है. If you are able to see 2 on your screen as the answer, just write down 2 into the chat. This is the formula that I have used. This is the value I have used. Just write down 2 into the chat if you are able to see 2 as the output. If you are able to see 2 as the output, just write down 2 into the chat. All right, moving on. Now what we have to do is we have to perform the whole operation into the whole column. ये हमारा एक वैल्यू में अभी परफॉर्म हुआ है, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे 19,446 वैल्यूज हैं, सब में हमें परफॉर्म करना है. तो उसके लिए अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. ड्रैग एंड ड्रॉप हम नहीं करेंगे. ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ हम यहां पर क्या करेंगे? विल जस्ट गो टू द बॉटम राइट. देखिए बॉटम राइट, उसके ऊपर कर्सर आप ले जाते हैं, डबल टैप आपको यहां पर करना है. डबल टैप करते ही आप देखेंगे पूरे कॉलम में आपका सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है. अगर आपके भी लैपटॉप में ऐसा हो चुका है, जस्ट राइट डाउन ऑल डन इनटू द चैट. जस्ट राइट डाउन ऑल डन इनटू द चैट. ऑल राइट, ग्रेट. ऑल डन इनटू द चैट गाइस. All right, moving on to the third task. Third task हमारा क्या कहता है? Calculate the profit. So first of all, what we have to do is we have to
create a new column with the name of profit. So this is what we have done. Profit हमने create किया. Just a second. Profit हमने create किया. Just write down PD into the chat if you have created the same kind of profit thing. Just write down PD into the chat. Just write down PD into the chat. All right, great. अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहां पर अगर आप कॉलम्स को देखें, एक है हमारा लिस्ट प्राइस और एक है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट. तो लिस्ट प्राइस में से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को माइनस करने वाले हैं. सो जस्ट राइट डाउन easy. All right, let's move on to the next sheet. The next sheet is customer demographic sheet. Customer demographic sheet, please focus guys. Customer demographic sheet, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हम दोबारा परफॉर्म करने वाले हैं. ओके, तो थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा. कस्टमर डेमोग्राफिक शीट के अंदर हम आ चुके हैं. ऑलराइट, ओके. अब यहां पर आप देखिए, पहला जो रो है वो फिर से हमारे पास नोट है. जस्ट डिलीट द फर्स्ट रो. इफ यू हैव डिलीटेड, जस्ट राइट डाउन DD इनटू द चैट. जस्ट राइट डाउन DD इनटू द चैट गाइस. जस्ट राइट डाउन DD इनटू द चैट. आपको रिमूव नहीं करना है. अगर आपको डॉलर दिखाई दे रहा है, जस्ट डोंट रिमूव इट. ऑलराइट, ओके. DD इनटू द चैट. इसके बाद हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे. आपको ब्लैंक्स को रिमूव करना ऑलरेडी आ चुका है. ब्लैंक्स रिमूव कीजिए. मैं फिर से प्रोसेस को यहां पर रिपीट कर रहा हूं. Ctrl+A टू सिलेक्ट द होल डेटा. जस्ट राइट डाउन सिलेक्ट डन. SD इनटू द चैट. SD इनटू द चैट गाइस. आफ्टर दैट Ctrl+G. Ctrl+G guys. Ctrl+A, then Ctrl+G. Go to special and then select on special. Select on blanks. Okay. Into the home tab. Right inside delete. Delete cells. Entire row. Okay. Is it done by everyone or not? Is it done by everyone or not? Let me see into the chat. Is it done by everyone or not? Into the second sheet, that is customer demographic, we have performed the very first task. Okay. Now let's move to the second task. The second task is delete the unwanted data. Delete the unwanted data. Now what is the unwanted data? If you look at the K column, default नाम का हमारे पास column है. इसमें जो values input हैं already, are you guys able to understand those values? Are you guys able to understand those values? Yes or no into the chat? No, right? That means it is the unwanted data, right? Okay. And we should delete this particular data. So just delete K column. Just click on K, right click and delete. Just write down KD into the chat. Just write down KD into the chat, guys. All right, great. ये सारी चीजें हमारे पास हो चुकी हैं. हमें जेंडर कंसिस्टेंसी और यहां पर लानी है. जेंडर कंसिस्टेंसी हम कैसे ला रहे हैं, जेंडर कंसिस्टेंसी से क्या होगा, ये सब पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो यहां पर हमें क्या करना है, ये पूरा प्रोसीजर है. सबसे पहले हम फिल्टर लगाएंगे टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द जेंडर इनकंसिस्टेंसी दैट वी आर फेसिंग. ओके, सो Ctrl+A, गो टू द डेटा टैब. डेटा टैब जो हमारे पास है, और इसमें जो फनल आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दैट. ओके, फनल आपको जो दिखाई दे रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दैट. ये जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपका फिल्टर अप्लाई हो जाता है. जब आप इस पे क्लिक करेंगे, सो यू गाइज आर एबल टू सी दैट देयर आर 5 कैटेगरीज. एफ, फीमेल विदाउट ई, फीमेल विद ई, एम, मेल. ये अलग अलग तरीके की 5 कैटेगरीज हैं. बट एक्चुअल में ये 2 कैटेगरीज हैं. यस और नो? यस और नो गाइज? यस और नो? एक्चुअल में ये 2 कैटेगरीज हैं. यस. कैसे लगाया फनल मैंने? Ctrl+A, गो टू द डेटा टैब एंड क्लिक ऑन फिल्टर. ओके, ठीक है. ये एक्चुअल में 2 कैटेगरीज हैं. तो अगर मैं एवरेज लेने की कोशिश करूंगा, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट दैट वी हैव जनरेटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल? अगर हमारे पास 5 कैटेगरीज होंगे तो वो हम नहीं कर सकते, राइट? नहीं कर सकते. यस और नो इनटू द चैट. सो वी हैव टू क्रिएट द जेंडर कंसिस्टेंसी. हमें यहां पर इसको फिक्स करना होगा. और कैसे करेंगे? हम फिक्स करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस से. सो सिलेक्ट द होल कॉलम. जस्ट क्लिक ऑन D, सिलेक्ट द होल कॉलम, गो टू द होम टैब. ऑन द राइट हैंड साइड, वेरी राइट हैंड साइड, देयर इज फाइंड एंड रिप्लेस. रिप्लेस पे आप क्लिक करते हैं. फाइंड व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड फर्स्ट. फीमेल पूरा आपको लिखना है. फीमेल देखिए, और उसको किससे रिप्लेस करना है? एफ से रिप्लेस करना है. क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल. So this is how we have
like made changes into 1657 values. उसके बाद female without E, replace all, one replacement. And then male and replacing with M, replace all, 1530 values. Now let's check it. We have only F and M. अगर अब हम एवरेज चेक करने की कोशिश करेंगे, we'll get the right answer. So are you guys able to understand that what I'm saying? Why we need to like perform the gender consistency? Yes or no into the chat? Yes or no into the chat? If that operation is performed, the operation is performed. Yes. All right. That's great. That's great. अगर आपको समझ में नहीं आया है, नेक्स्ट शीट में हम सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं. So you can focus on that. Okay. All right. अब यहां पर हम कस्टमर डेमोग्राफिक के अंदर पहुंचने वाले हैं. देयर मस्ट बी यू ऑल्सो. अगर यू आपको दिखाई दे रहा है डेटा में, दैट इज ओके, दैट इज अनस्पेसिफाइड. ठीक है, चलिए हम पहुंच चुके हैं फाइनल डेटा सेट में, दैट इज कस्टमर डेमोग्राफिक. इसमें सबसे पहले हमें पहला रो जो दिखाई दे रहा है, जस्ट क्लियर दैट, delete that particular cell, just delete that particular row. If that is done, just write down DD into the chat. If that is done, just write down DD into the chat. You don't need to find out the blanks क्योंकि इस sheet में blanks नहीं है. All you need to do is find out the inconsistency. तो उसके लिए हम select all करते हैं, data के अंदर जाते हैं और filter लगा देते हैं. उसके बाद state में हम देखते हैं, what do you think, कहाँ पर inconsistency है, किसे हम replace करना चाहिए, what do you think? I'm waiting for your answers, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं और अब आप आंसर कर सकते हैं. यहाँ पर कहाँ पर हमें इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है? I'm waiting for your answers, guys. इनकंसिस्टेंसी हमें कहाँ पर दिखाई दे रही है? स्टेट में NSW is there, right? And what is the next one? NSW, New South Wales, and along with that we have VIC, right? VIC, Victoria. All right. So what we have to do, न्यू साउथ वेल्स को चेंज करना है NSW से और विक्टोरिया को VIC से. ठीक है, लेट्स परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क. स्टेट को चूज करते हैं. होम के अंदर राइट हैंड साइड में फाइंड एंड रिप्लेस में हम जाते हैं. फाइंड एंड रिप्लेस में फाइंडिंग व्हाट? फाइंडिंग न्यू साउथ एंड वेल्स एंड रिप्लेसिंग विद व्हाट गाइस? रिप्लेसिंग विद व्हाट? राइट, NSW. So replacing all 86 replacements, and then Victoria and replacing with VIC, replace all. So congratulations guys, you have successfully like performed all the operations and cleaned the whole data. How was it cleaning the data? How was it guys? We have performed the first phase of the project is done. First phase of project is done. How was it guys? How was it? Let me see into the chat. How was it? Thank you so much. Thank you so much. Okay, moving on. Now let's go to the next task. हम यहाँ पर अब रिपोर्ट देखने वाले हैं. Whenever you are into the corporate, you are not only performing the operations, you are also documenting your work. Because you have to share the whole steps, you have to share your whole approach, you have to share the output, you have to share the assumptions that you have done, you have to share the recommendations. तो उसके लिए आपको एक report generate करनी पड़ेगी. So this is what we have done. We have created a report and you can see there is the feedback to the client. So we are writing to Raghav. Raghav is someone from the client side. We appreciate you providing us with the 3 data sets that we have analyzed, right? That is customer demographic, customer address, and transaction data. A brief summary of issues associated with the data set is provided below. If you encounter any difficulties, please let me know. कस्टमर डेमोग्राफिक में जेंडर इनकंसिस्टेंस है, एज मिसिंग है, ब्लैंक्स हैं जॉब टाइटल्स में. कस्टमर एड्रेस में स्टेट इनकंसिस्टेंट है, ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन मंथ मिसिंग है, प्रॉफिट मंथ भी मिसिंग है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है, जेंडर कंसिस्टेंट हमने किया था या नहीं किया था? यस और नो इनटू द चैट. जेंडर कंसिस्टेंसी हमें करनी पड़ी, राइट? या यस और नो? ओके, और उसके बाद प्रॉफिट का कॉलम हमें क्रिएट करना पड़ा, स्टेट हमें कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करनी पड़ी, मंथ का कॉलम हमें क्रिएट करना पड़ा. सो ऑल द टास्क दैट वी हैव परफॉर्म्ड हमने यहां पर उन्हें लिस्ट आउट किया. आफ्टर दैट what are the recommendations that we want to provide? Provide gender consistency.
हम कह रहे हैं कंपनी से कि आपको जेंडर कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करनी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए विद द एज ऑफ द कस्टमर, टेक केयर ऑफ द ब्लैंक्स, एड ट्रांजेक्शन 1 टू द डेटा सेट एंड इंक्लूड अ प्रॉफिट कॉलम। जो भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म किए हमने, वही हमने रिकमेंडेशंस में रख दिए। क्लियर टू ऑल, यस और नो? द रिपोर्ट इज क्लियर टू ऑल? Just write down R into the chat so I can understand that the report is also clear to all. Just write down R into the chat. All right, great. Now we have reached to the final phase of the project, that is creating a real world dashboard using the data that we have cleaned. हमने जो डेटा क्लीन किया है उसको यूज करते हुए हम यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, एक डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। नाउ बिफोर क्रिएटिंग द डैशबोर्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आपको एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी, दैट वी आर कनेक्टेड फ्रॉम लास्ट 2 hours and you cannot learn everything in just 2 hours, right? You cannot learn everything. That is not possible. Yes or no into the chat? Learning everything is not possible in just 2 hours. Yes or no into the chat, guys? Right? That is why we have organized the 5 days data science workshop. That is why we have structured the things. That is why we are creating different things on the different days. So guys, you will be getting the detailed training about Tableau in day 3, day 4, and day 5. Clear to all? Yes or no into the chat? You're going to get the detailed training in day 3, day 4, and day 5. But why we are using Tableau today? If you are going to get the training in day 3, day 4, day 5, then why we are using Tableau today? Because we have to create the whole project, right? We have to create the full project. So in order to create the full project, in order to create the dashboard, we have to use Tableau. आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन आप ये पूछें कि ये प्रोसीजर कैसे हुआ? So that is not a good question because we are not learning about Tableau. We are just using Tableau. Okay, हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं. All right, clear to all? Yes or no into the chat? तो क्या मैं ये कह सकता हूं that I'm not going to see irrelevant questions into the chat? I'm not going to see the questions कि ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया, ये कैसे हुआ? क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये चीज हम कब यूज करने वाले हैं? ये चीज हम यूज करने वाले हैं डे 3, डे 4, डे 5 में. Which one is better, Tableau or Power BI? I'm getting these kind of queries a lot. So the thing is, the only difference between both the tools is the service provider. Okay, मैं Tableau use करता हूं because Power BI is not available over what? Over MacBook devices. ओके, तो डे 3, डे 4, डे 5 में आप सब सीखेंगे, आप कैसे टैबलो डाउनलोड करने वाले हैं, आप लाइसेंस कैसे ले सकते हैं फॉर फ्री, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हैं. सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स. नाउ टैबलो, टॉकिंग अबाउट टैबलो, अमेजिंग सॉफ्टवेयर, बीआई टूल है, AI ड्रिवन टूल है, बहुत ज्यादा स्मार्ट टूल है. ऑटोमेटिकली यू डोंट नीड टू टेल द टैबलो एवरी टाइम दैट व्हाट यू नीड टू परफॉर्म. ड्रैग एंड ड्रॉप से बहुत अमेजिंग आप डैशबोर्ड्स बना सकते हैं. लेट मी टेल यू दिस. अब यहां पर देखिए, सबसे अच्छी खासियत जो है टैबलो के बारे में वो ये है that all the possible data sources, all the possible data servers in the world can be connected, can be integrated with Tableau in very easy steps. अब यहाँ पर देखिए, अलीबाबा का सर्वर हम कनेक्ट कर सकते हैं, अपाचे कर सकते हैं, अमेज़न कर सकते हैं, बॉक्स कर सकते हैं, हम ड्रॉप बॉक्स कर सकते हैं, हम फायरबर्ड कर सकते हैं, गूगल के जितनी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, इम्पाला कर सकते हैं, मारिया कर सकते हैं, हम यहाँ पर माई सीक्वल कर सकते हैं. ठीक है, और भी अगर हम देखें यहाँ पर पोस्ट सीक्वल कर सकते हैं, हम यहाँ पर सेल्स फोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वेब कनेक्टेड कर सकते हैं. यानी कि कहने का बस इतना सेंस है, all the possible data sources in the world can be easily integrated and connected with what? With Tableau. All right. Okay. तो वही करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वर को तो आज कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने आज एक फाइल क्रिएट की है. तो मोर पर क्लिक करता हूं. आपके पास रॉ फाइल थी या टेस्ट फाइल थी? अगर रॉ फाइल के अंदर आपने सारे टास्क परफॉर्म कर लिए थे तो आप उसे सेव करके रॉ फाइल को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट फाइल को यूज कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी मैंने टास्क परफॉर्म करते हैं आपके लिए. ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट फाइल को यूज कर रहा हूं, मैं इसे ओपन कर रहा हूं. ओपन करते ही क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे, ओपन करते ही हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ चुकी है जिसमें ट्रांजैक्शन शीट को मैं ओपन कर लेता हूं. सो दिस इज द ट्रांजैक्शन शीट. क्या क्रिएट करने वाले हैं हम डैशबोर्ड में? डैशबोर्ड में हम एवरेज प्रॉफिट डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं.
प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, एवरेज प्रॉफिट हमें कितना अर्न हो रहा है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट जेंडर्स, उससे हमें एवरेज प्रॉफिट कितना मिल रहा है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट ब्रांड्स, उससे हमें एवरेज प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ठीक है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट मंथ्स, हर मंथ में हमें एवरेज प्रॉफिट कितना मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग, ऑलराइट। Just write down AP, average profit, into the chat if you have understood that what we are creating. Just write down AP into the chat, average profit into the chat. All right, great. अब यहाँ पर देखिए, I have to use more than one sheet in order to create this particular dashboard, क्योंकि हमारे जो जेंडर्स हैं वो कस्टमर डेमोग्राफिक के अंदर है, ठीक है। और ट्रांजैक्शंस हमारे ट्रांजैक्शन शीट में है। हमारा जो शीट है जिसमें हम अगर बात करें जो हमारे ब्रांड्स हैं वो भी हमारे कस्टमर डेमोग्राफिक के अंदर है। सो वी हैव टू कनेक्ट टू डिफरेंट शीट्स एट अ टाइम। टैबलू बहुत ज्यादा एआई ड्रिवन टूल है, ये मैं क्यों कहता हूं, बस आप यहां पर फोकस कीजिएगा। मैं सिर्फ कस्टमर डेमोग्राफिक को यहां से ड्रैग कर रहा हूं, ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूं। यू कैन सी ऑटोमेटिकली एक रिलेशन बिल्ड किया जा रहा है। कैन यू सी दैट, यस और नो? ऑटोमेटिकली टैबलू इन दोनों शीट्स के अंदर एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। कैन यू सी दैट, यस और नो इनटू द चैट गाइस? कैन यू सी दैट, यस और नो इनटू द चैट? और जैसे ही मैं इसे ड्रॉप करता हूं, मैं कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया हूं। आप यहां पर देखिए, अ रिलेशनशिप इज ऑलरेडी बिल्ट। कस्टमर डेमोग्राफिक, कस्टमर आईडी जो है ट्रांजैक्शन शीट के अंदर, उसमें ऑपरेटर लगाया इक्वल टू के, और कस्टमर डेमोग्राफिक में भी कस्टमर आईडी है। इन दोनों शीट के अंदर ये पर्टिकुलर कॉलम इक्वल टू है, इसलिए टैबलो ने ऑटोमेटिकली इनको ज्वाइन कर दिया। ओके, अमेज्ड टू सी दैट और नॉट? अमेज्ड टू सी दैट और नॉट? आर यू अमेज्ड टू सी दैट और नॉट? All right, great. Now we can create the first sheet. जैसे हम एक्सेल के अंदर करते हैं वैसे ही हमने फर्स्ट शीट यहाँ पर क्रिएट की। Let's create the average profit visualization according to the months. ठीक है, तो मैं मंथ सबसे पहले सर्च करता हूँ। This is the month that we are creating. This is the same month that we have fetched from the date part. All right, clear to all? Yes or no into the chat? This is the same month. इसे मैं पुट इन करता हूँ कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर पुट इन करने के बाद हमारे पास मंथ्स आ गए हैं जो कि कैटेगरिकल डेटा है। उसके बाद एबीसी हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें क्वांटिटेटिव डेटा की जरूरत है, तो मैं प्रॉफिट सर्च करता हूँ। प्रॉफिट भी हमने ही क्रिएट किया था, यस और नो? प्रॉफिट हमने ही क्रिएट किया था, यस और नो? ऑल राइट, तो इसको मैं एबीसी जहां पर वैल्यूज की जरूरत है वहां पर ड्रॉप करता हूँ, एंड दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग। लेकिन मैंने क्या कहा था, हम एवरेज प्रॉफिट डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर ये सम जो है इसको कर देता हूं मैं एवरेज। ओके, एवरेज कर दिया। नाउ लेट्स सी द विजुअलाइजेशन। मैं बार बार कह रहा हूं कि टैबलो एक एआई ड्रिवन टूल है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए मंथ्स अगर हम देखें जनवरी फरवरी, तो ये क्या है, हमारी कैटेगरिकल डेटा है। कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं प्रॉफिट को, यस और नो इनटू द चैट? यस, मंथ्स आर द कैटेगरिकल डेटा, यस और नो इनटू द चैट? और प्रॉफिट इज द क्वांटिटेटिव डेटा, राइट? अब क्वांटिटेटिव डेटा और कैटेगरिकल डेटा को यूज करते हुए हम कैसे विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, ये हमें ऑलरेडी टैबलो सजेस्ट कर देगा। तो जैसे ही मैं शो मी पे क्लिक करता हूं, देयर आर नंबर ऑफ विजुअलाइजेशंस, कुछ ब्लर्ड है कुछ ओपन है। तो टैबलो मुझसे कह रहा है कि मैं ऐसे एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं, ये भी क्रिएट कर सकता हूं, ये भी क्रिएट कर सकता हूं। आई एम सिलेक्टिंग द ट्री मैप। ट्री मैप मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूं। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कैसे मंथ्स में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ट्री मैप के अंदर? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? साइज, कलर, एनीथिंग? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक गाइस? व्हाट डू यू थिंक? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, बिकॉज इफ यू लुक क्लोजली इनटू इट, हमारे पास एक ग्रेडियंट दिया गया है। लाइट अगर कलर है क्वांटिटी कम है, डार्क अगर कलर है क्वांटिटी ज्यादा है। जैसे फैब में हमारे पास सबसे लाइट कलर है, द क्वांटिटी इज 545, और सबसे डार्क है नवंबर में, द क्वांटिटी इज 567। कम रेंज है लेकिन डिफरेंस है। क्लियर टू ऑल? यस और नो इनटू द चैट? यस और नो इनटू द चैट गाइस? आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, तो इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पर मंथ, और इसकी डिटेल ट्रेनिंग हम डे 3 डे 4 डे 5 में लेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट शीट क्रिएट करते हैं, इसको कर लेते हैं हम जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। जेंडर के बेसिस पे कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट द जेंडर्स। सो दीज आर द जेंडर्स, कॉलम के अंदर हमने पुट इन किया, और सेम प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से नल एक्सक्लूड कर देते हैं। इसके बाद प्रॉफिट को फाइंड आउट में कर रहा हूँ, और एबीसी के अंदर मैं पुट इन कर रहा हूँ उसको। एबीसी आर द वैल्यूज, तो सम नहीं चाहिए हमें, एवरेज चाहिए।
देखते हैं कौन से विजुअलाइजेशन हम क्रिएट कर सकते हैं. सो दीज आर द विजुअलाइजेशन. ऑलमोस्ट जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, जो साइज ऑफ द सर्कल है, सेम दिखाई दे रहा है. यस और नो इनटू द चार्ट. ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहा है. डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं. यस और नो. ओके, वी शुड यूज सम अदर थिंग. ट्री मैप मेल और फीमेल में मुझे काफी सेम दिखाई दे रहा है. इसमें भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं. राइट. सो दैट इज वेरी 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 important, that how you are going to use the visualization, which type of visualization you should use for a specific data. तो यहां पर मैं बार ग्राफ क्रिएट करता हूं. बार ग्राफ क्रिएट करते ही अब आप क्या मुझे बता सकते हैं, which category is generating the maximum amount of average profit, female, male or unspecified? Female, male or unspecified? Female, male or unspecified? Unspecified, right? Now we can easily identify that particular part. Okay. So that is what I was saying कि unspecified हो चुका है हमारा. अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में, that is brand. According to the brand we are creating things. Okay. हम यहाँ पर सर्च करते हैं. ब्रांड मैंने सर्च किया. Using brands we are putting it into the columns. और इसके बाद null फिर से मैं exclude कर देता हूँ. और इसके बाद हम सर्च करते हैं profit. Profit को सर्च करने के बाद ABC and average profit and क्या आप बता सकते हैं यहां पर किसकी बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जा रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स. कलर्स आर टोटली डिफरेंट, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर्स आर टोटली डिफरेंट, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ऑन द बेसिस ऑफ द रेडियस, ऑन द बेसिस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट? ओके. यहां पर सबसे छोटा जो साइज है वो नॉर्को बाइसाइकिल्स था है. अगर एवरेज प्रॉफिट हम देखेंगे $298. वीआर ए टू बी का सबसे बड़ा यहाँ पर साइज हमें दिखाई दे रहा है. अगर एवरेज प्रॉफिट देखेंगे $835. ओके. सो राइट, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. अब एक डैशबोर्ड बना लेते हैं. डैशबोर्ड इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ शीट्स. ये हमने जो अब तक क्रिएट किए थे आर द शीट्स. एंड व्हाट इज द डैशबोर्ड? इज द कलेक्शन ऑफ शीट्स. तो हम सिंपली शीट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे. वी हैव ड्रॉप द मंथ पार्ट, द जेंडर पार्ट एंड द ब्रांड पार्ट. ऑलराइट, बाय मिस्टेक. ओके, द जेंडर पार्ट. Okay, we can also add images, spaces or links and text. तो मैं text introduce करता हूँ. Let's write the text of let's keep it 32 bold and centrally aligned. And what we are doing is average profit and dashboard. Right? Okay करते हैं. So we have finally created, we have successfully created in less than 10 minutes a functioning dashboard. How was it, guys? How was it? Learning about Tableau. How was it? How was it, guys? Let me see into the chat. How was it? Amazing? Amazing or not? Amazing or not? Yes or no into the chat? Yes or no into the chat, guys? Amazing or not? All right, great. So finally, we have reached to the phase 3 of the workshop, that how you can make a career into the data domain. So are you guys excited about the same? Are you guys excited about the same? Yes. All right, moving on. Moving on, guys. Moving on. Let's discuss about the same, right? How many of you wants to make a career into the data domain? Let me see into the chat. Many? All right. Let me tell you that how you can make a career into the data domain. All right. Be focused, guys. Be focused. तो सबसे पहले हम डिमांड के बारे में समझते हैं. So what I'm doing is I'm searching for jobs over LinkedIn. I'm searching for jobs over LinkedIn and I'm writing data analyst under the job part. And as I can see, only 51 persons have sent me the request. Many of you haven't sent me the request. If you want to make your career into the data domain in 2023, just connect with me over LinkedIn because I'm sharing regular resources so you can make a career into the data domain. All right. So this is the link.
from which you can connect with me over LinkedIn. Genpact is there, Wells Fargo is there, Jen Sahas is there. So बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर हायर कर रहे हैं. 1 लाख से ज्यादा जॉब्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं. अगर मैं ये देखूँ कि लास्ट 24 आवर्स में कितनी जॉब पोस्ट की गई हैं, ओवर 2000 जॉब्स जो है वो लास्ट 24 आवर्स में पोस्ट की गई हैं, जिसमें से एरिक्सन भी है, इन्फोसिस भी है, साइमंस भी है, कोंगा भी है, एसेंचर भी है, और बहुत सारी ओरेकल भी है. बहुत सारी कंपनीज हैं हु आर हायरिंग फॉर द डेटा प्रोफेशनल्स इनटू द करंट सिनेरियो. अगर मैं यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिस्ट सर्च करता हूँ, फाइनेंशियल एनालिस्ट बहुत ज्यादा नीश हो जाता है. फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दीज गाइज कैन मेक अ करियर इनटू द फाइनेंशियल डोमेन. तो फाइनेंशियल एनालिस्ट मैंने यहाँ पर सर्च किया है, एंड यू कैन सी जीपी मॉर्गन इज हायरिंग फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट. एंड हु एल्स इज हायरिंग? लेट्स लुक. Wipro is hiring, Shell is hiring, Genpact is hiring, JLL is hiring, Accenture is hiring, FIS is hiring. तो बहुत सारी कंपनीज हैं who are hiring for these particular profiles. ओके अब यहाँ पर सर्च करते हैं, लेट्स सर्च फॉर बिजनेस एनालिस्ट. बहुत सारे जो लोग हैं जो मार्केटिंग में जाते हैं, जो सेल्स में जाते हैं, दे वांट टू मेक योर करियर, दे वांट टू मेक देयर करियर इनटू द बिजनेस एनालिटिक्स डोमेन. तो यहाँ पर 37,000 से ज्यादा जो जॉब्स हैं वो बिजनेस एनालिटिक्स के लिए हैं. जेनपैक्ट इज हायरिंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, कैपजेमिनी इज हायरिंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, UST is hiring, Extria is hiring, Street is hiring. Top companies are also hiring, like Accenture is there, JP Morgan is there, Barclays is there. तो बहुत सारी companies हैं who are hiring. The demand is exploding. All you need to do is get the skills which are required. चलिए और ज्यादा थोड़ा सा हम सर्च कर लेते हैं. Let's search on the different portal. Let's search over Naukri. Naukri के ऊपर हम डेटा एनालिस्ट सर्च करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे over 77,000 jobs are there. Over 77,000 jobs are there. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे what are the different skills which are required, जैसे Excel is required, Python is required, SQL is required, Power BI is required, Excel is required. Again, यहाँ पर देखिए Python, SQL. So these are the key skills which are required in order to make a career. ठीक है, Power BI is there. फिर से हम देखेंगे यहाँ पर SQL is there, ETL tool is there, Python is there, Python, SQL. These are the tools. ठीक है. अब आप पूछेंगे कि कितना जॉब्स में आप जो है कितना अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट. ओके ये देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करते हैं. यहाँ पर नौकरी का ये डेटा है, आई एम नॉट सेइंग दिस, नौकरी का ये डेटा है. नौकरी ने अलग अलग स्लैब्स में जॉब्स को डिवाइड किया है. 4 स्लैब्स हैं. द फर्स्ट स्लैब इज 3 to 6 lakhs, और इसके अंदर 32,000 जॉब्स हैं. 6 to 10 लाख के स्लैब में 42,000 जॉब्स हैं. 10 to 15 लाख के स्लैब में 32,000 जॉब्स हैं, और 15 to 25 के स्लैब में 19,000 जॉब्स हैं. जो मोस्ट नंबर ऑफ द जॉब्स हैं वो 6 to 10 lakhs के स्लैब में है, क्योंकि दिस इज द एवरेज सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट एज अ फ्रेशर इनटू द डेटा डोमेन. ऑलराइट, दिस इज द एवरेज सैलरी. We are also a job portal. Jobaz Learnings and Jobaz.com is also a job portal. We have our own job portal, और जिसके ऊपर we are regularly posting for the profiles of Jobaz, for the profiles of data analytics. As you can see, यहाँ पर we are also actively hiring for the data domain. ओके चलिए आगे चलते हैं. हमने यहाँ पर देखा दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड. पाइथन इज रिक्वायर्ड, एक्सेल इज रिक्वायर्ड, एसक्यूएल इज रिक्वायर्ड, टैब्लो इज रिक्वायर्ड, पावर बीआई इज रिक्वायर्ड. दिस काइंड ऑफ टूल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक अ करियर इनटू द डेटा डोमेन. सो हाउ यू कैन गेट दीज पर्टिकुलर स्किल्स, आप ये स्किल्स कैसे गेन कर सकते हैं. सो लेट्स सी द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस विच आर प्रोवाइडेड ऑनलाइन. जैसे अगर हम सर्च करते हैं टैब्लो का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम सिंपली डन. अगर इसके ऊपर आप फोकस करते हैं, लेट्स सी द प्राइसिंग, let's click on the enroll now button. I'm clicking on enroll now. The pricing is 27,000. Is it expensive? Just to learn Tableau, they're charging 27,000. Is it expensive? Let me see into the chat. Is it expensive? Yes or no into the chat. Very expensive. All right. Let's see another provider. So another provider is Edureka. And how much Edureka is charging? Edureka is charging 1700.5. Sorry, 17.5 thousand. 17.5 thousand. Still expensive. Still expensive. Let's see. अगर आप सारी स्किल सीखना चाहते हैं, ये सिर्फ था टैब्लो के लिए. अगर आप सारी स्किल सीखना चाहते हैं, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, आप एसक्यूएल सीखना चाहते हैं, आप टैब्लो भी सीखना चाहते हैं, सो देयर इज अ प्रोग्राम फ्रॉम इंटेलीपाथ एंड दे आर चार्जिंग $1,000, roughly around 80,000 rupees. Is it expensive? What do you think? Is it expensive? Yes or no into the chat. All right, let's see the another provider that is Simply Learn.
Okay, so how much Simplilearn is charging? Simplilearn is charging 54,000 rupees. Okay, all right. That is again expensive, right? So as I told you, we are also a job portal. So from last many years, we are helping the job seekers in getting their dream job. We are helping into that particular domain. We have studied all the materials. We have studied the different kind of service providers, how much they are charging, and because of that, by studying everything, what is the requirement, what is the demand, and what is the fees that the portals are charging. By studying everything, we are launching our own corporate training program. Our own corporate training program. Let me tell you about that. So this is a data analytics corporate training, and you are going to be specializing in Tableau. You're going to be learning every particular tool which is required, like Python is there, SQL is there. We are going to be learning